Test match cricket is so much better when Kohli was playing. We will move on. We moved on from Gavaskar to Tendulkar to Kohli and maybe to Gill, but Kohli added so much to this game of cricket. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachana. This means you have a right to your prescribed duties, but not to the fruits thereof. 12th May 2025, Virat Kohli announced his retirement from Test cricket. 9,230 runs, 100 plus matches और 30 सेंचुरीज के साथ विराट कोहली says goodbye to Test cricket. Virat Kohli has announced his retirement from Test cricket. This is an end of an era, the end of a legendary Test career. Once I'm done, I'll be gone. You won't see me. A player, a captain who changed the face of Test cricket in India. Virat Kohli is the best player I've ever seen in my life. The comebacks, Unbelievable performance from India. the controversies, the celebrations. Remarkable player has adorned a remarkable. Virat Kohli redefined Test cricket in this modern cricket era. Look, when I step onto the field, I have to believe that I'm the best. Despite this, without any proper farewell, with no guard of honor, Test cricket's favorite child bid adieu to this format. और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विराट कोहली के इसी legendary Test career की. A player who showed the world how Test cricket should be played. नवंबर 2006 को विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के अगेंस्ट अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं. डेब्यू के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद 18 दिसंबर 2006 को विराट कोहली के फादर का देहांत हो जाता है. उस समय विराट कोहली सिर्फ 18 साल के होते हैं और उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा सिर्फ वही जानते हैं. I hadn't cried at all, nothing, no emotion, and my family was actually feeling a bit nervous looking at me because I was showing no emotion and everyone was like, crying and they were emotional. Despite this tragic loss, a young Virat Kohli came to play the match against Karnataka and he scored 90 runs of 238 balls. विराट की यही डिफेंसिव इनिंग्स के बदौलत दिल्ली टीम फॉलो ऑन को अवॉइड कर देती है and ultimately the match ends up in a draw. इसी एक दिन ने विराट कोहली की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया. After his dismissal, Virat immediately comes back home and does the last rituals of his father. That day, Virat promised his father a promise which said, I'm going to play for my country and I am going to play this game at the highest level and there's nothing else in life that can distract me anymore. And the rest is history. विराट कोहली की डोमेस्टिक और अंडर 19 सर्किट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे अगस्त 2008 में उनको इंडिया की ओडीआई टीम में डेब्यू करने का मौका मिला एंड लेटर ऑन ही बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियाज 2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल. लेकिन व्हाइट बॉल में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने के बावजूद विराट को अपने टेस्ट डेब्यू के लिए 3 साल का वेट करना पड़ा एंड फाइनली ऑन 20th June 2011 Virat Kohli wore the whites for the very first time on the West Indies tour. Cap number 269 walked in and a legendary Test career was born. विराट की डेब्यू सीरीज उनके लिए इतनी खास नहीं रही. He was able to score just 19 runs in his debut Test match and a total of 76 runs in a 3-match Test series against West Indies. इसी के चलते अपने डेब्यू के सिर्फ एक ही महीने बाद विराट कोहली को टेस्ट टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाता है. विराट कोहली was not selected in India's Test squad for the 2011 England tour. 2011 के इंग्लैंड टूर के बाद विराट कोहली को फिर से एक मौका मिलता है और उनको ऑस्ट्रेलिया में हो रहे बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज के लिए इंडियन टेस्ट टीम में सिलेक्ट किया जाता है. This was the first ever Australia tour for विराट कोहली. लेकिन एक बार फिर विराट का परफॉर्मेंस पहली 2 मैचेस में काफी खराब रहता है. विराट 4 इनिंग्स में सिर्फ 43 रन ही बना पाता है. विराट्स फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया टूर वाज नॉट एट ऑल गोइंग लाइक ही वुड हैव इमेजिन्ड और विराट की यही खराब परफॉर्मेंस देख के 6 जनवरी 2012 को संजय मांजरेकर ने ट्वीट करते हुए कहा
कि give Virat Kohli one more test just to be sure that he does not belong here. This tweet ignited a lost fire in Virat Kohli. इस ट्वीट के सिर्फ एक ही हफ्ते बाद 13th January 2012 को विराट कोहली पर्थ में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के थर्ड टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, he was the highest run scorer for India in both the innings. विराट सिर्फ यही नहीं रुकते. He went on to score his first test century in the fourth test match of the Border Gavaskar Trophy. Little did we know, this was the start of an era of Virat Kohli dominating Australia. विराट कोहली के इस कमबैक ने संजय मांजरेकर और सारे क्रिकेट फैंस को कह दिया कि he belongs here and he is here to rule the test format. बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज के बाद विराट कोहली ने अगले 3 साल तक अपना फॉर्म कंटिन्यू ही रखा. इस बीच वो कई सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करते हैं, पर उनका नेक्स्ट चैलेंज था the England Test Tour. English conditions have always created troubles for Indian batters, and unfortunately, Virat Kohli भी उसी का शिकार बने. India Tour of England 2014 was the worst tour. In fact, the worst Test series for Virat Kohli in his entire career. Virat scored just 134 runs in 10 innings with an average of just 13.4. विराट कोहली ने खुद अग्री करते हुए कहा है कि this was the worst test series he had ever played and it was the lowest point of his career. Virat Kohli also revealed, still to get out of bed and just get dressed for the game and to go out there to go through that knowing that you will fail was something that just ate me up. It just demolished me completely. 2014 के इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद विराट कोहली के टीम सिलेक्शन को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे, बट विराट कोहली जस्ट फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ. He started mentally visualizing scoring runs against the most lethal bowler of that time. From the time I got back home till the Australia tour, I promise you I was visualizing every day when I was working out in the gym that I'm hitting Mitchell Johnson, I'm hitting these guys all over the park. यही विजुअलाइजेशन हकीकत में बदल गई और विराट कोहली ने 2014 ऑस्ट्रेलिया टूर में वो करके दिखाया जो आज तक कोई एशियन क्रिकेटर नहीं कर पाया. विराट 8 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज और 1 हाफ सेंचुरी बनाते हैं, डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलियन स्टाइल. ये सीरीज सिर्फ उनकी बैटिंग रिकॉर्ड्स के लिए जानी नहीं जाती, बल्कि ये सीरीज जानी जाती है विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी करियर की शुरुआत के लिए. मेलबर्न टेस्ट के बाद 30 दिसंबर 2014 को महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट फॉर्मेट से इमीडिएट रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं and a 25-year-old Virat Kohli becomes the new captain of the Indian Test team. विराट अपनी कैप्टनसी के पहले ही मैच में 147 रन्स बनाते हैं और इंडिया को एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालते हैं. इस सेंचुरी की बदौलत बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का 4th टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है. This Australia tour was the start of what we can say is the King Kohli era. इस टूर के बाद से मानो इंडियन टेस्ट टीम का खेलने का तरीका ही बदल गया. जो इंडियन टीम सेना कंट्रीज में सिर्फ मैचेस ड्रॉ कराने के बारे में सोचती थी, वही इंडियन टीम विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर सेना कंट्रीज में जाके डोमिनेट करना सीखी. I don't think anyone plays test match cricket with more passion than he does. This is not a team of God or demigod or seniors or juniors. This is an Indian cricket team that will jump over a cliff. विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी करियर की शुरुआत 2015 से हुई और उनकी कैप्टनसी के अंडर 2015 से 2017 तक इंडियन टीम एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी. During this period, India played 10 test series and they won 9 out of them, and only one series resulted in a draw. In fact, till 2021 World Test Championship Finals, India सिर्फ 3 टेस्ट सीरीज हारती है. 2018 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के अगेंस्ट और 2019 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. ये रिकॉर्ड इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि 2015 से 2021 तक इंडिया 21 टेस्ट सीरीज खेलती है, winning 17 of them and losing just 3. Apart from this, during Virat Kohli's test captaincy, India never lost a test series at home. In fact, India only lost 2 out of the 31 test matches that were played in India. Virat Kohli के कैप्टनसी के दौरान इंडिया का पेस अटैक इतना लीथल हो गया था
कि जब भी इंडिया के सेना कंट्रीज का टूर होता था तब इंडियन पेसर्स वर कंसिडर्ड द फेवरेट्स। ऐसा आज तक इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। विराट कोहली gave full freedom to the bowlers and he knew how to bring out the best in them. Before 2015, India ranked 7th in the world test rankings. But just 2 years later, in 2017, India became the #1 test team under Virat's captaincy. And they stayed at the top till the year 2021. विराट कोहली को भले ही एक failed captain consider किया जाता हो, but he was never a failed captain in test cricket. In fact, अगर हम records देखें तो he was the greatest test captain that India has ever had. टेस्ट कैप्टनसी के सक्सेसफुल जर्नी के साथ साथ 2016 से 2019 के बीच कोहली हैड वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट बैटिंग प्राइम्स फॉर अ टेस्ट क्रिकेटर। इस दौरान विराट कोहली 43 टेस्ट मैचेस में 4,208 रन्स बनाते हैं at an average of 66.79 with 16 centuries and 10 half centuries. This also included 7 double centuries, the most by a captain in Test cricket history. विराट कोहली एक के बाद एक अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे। In 2017, Virat Kohli scored 4th consecutive double 100 in 4th straight series and he broke the record of Don Bradman and Rahul Dravid. इसी बीच हमें काफी आइकॉनिक सेंचुरीज देखने को मिली और कई स्पेशल सेलिब्रेशंस भी। It's the 4th double 100 for Virat Kohli all in one season. And he becomes the first batsman. 2014 की सबसे खराब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद 2018 में विराट कोहली इंग्लैंड के सामने अपनी पहली सेंचुरी लगाते हैं। Player has adorned a remarkable day's cricket. A 22nd Test 100 for Virat Kohli. इंग्लैंड की इस डिफिकल्ट कंडीशन में विराट कोहली की 149 रन्स की इनिंग्स इतनी स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि इंडिया का दूसरा कोई भी बैटर 30 प्लस रन्स भी स्कोर नहीं कर पाया था। Be it England, be it Australia, Virat Kohli was dominating Test cricket as a batsman and as a captain. In 2018, Virat Kohli became the first Indian captain to win a Test series against Australia in Australia. And not just this, he also became the first Asian captain to conquer Australia. It's the only thing that needs to talk. Brilliance from King Kohli. During Virat's Test captaincy, India remained at the top of the world Test rankings for 5 straight years. From 2017 to 2021, India completely dominated Test cricket, but they couldn't get their hands on the World Test Championship title in 2021. इसी बीच 2019 से 2022 के दौरान विराट के टेस्ट करियर में एक डिप आता है। हाफ सेंचुरीज तो कई आ रही थी, मगर विराट कोहली जो सेंचुरीज लगाने के लिए जाने जाते थे उनके बैट से एक भी सेंचुरी नहीं आ रही थी। विराट कोहली की 27th टेस्ट सेंचुरी 2019 में बांग्लादेश के अगेंस्ट आई थी and it took him around 1205 days to score his 28th test century in March 2023. During this period, in January 2022, Virat also gave up the test captaincy amidst some controversy. हमें विराट की तरफ से एक अलग स्टेटमेंट सुनने को मिला और बीसीसीआई ने भी एक बिल्कुल ही अलग स्टैंस लिया। In fact, विराट कोहली even said, जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो MS धोनी। He ended his 7-year captaincy stint with 40 wins in 68 matches. इस रिकॉर्ड के चलते विराट कोहली इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन बन गए, adding his name to the list of India's top 5 greatest test captains. बतौर कैप्टन विराट ने अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज में हमें कई सारे आइकॉनिक मोमेंट्स दिए। In the second test match against England in Lords, जब इंडियन टीम फील्डिंग करने ग्राउंड पे आई तो उस टीम हडल में विराट कोहली ने कहा, ये डोमिनेशन, ये अग्रेसिव मेंटालिटी आज तक इंडिया की कोई भी कैप्टन में नहीं दिखाई दी। इंडियन टीम won that test match against England by a margin of 151 runs. This was the overall third and India's first victory at Lords under Virat's captaincy. 2021 में कैप्टनसी छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं विराट का टेस्ट क्रिकेट से फॉर्म भी चला गया था। जो बैटर 2012 से लेकर 2019 तक हर साल कंसिस्टेंटली सेंचुरीज बना रहे थे, अब खराब फॉर्म के चलते उनकी सेंचुरीज रुक गई थी। इनफैक्ट
2019 के बाद से विराट ने सिर्फ 3 ही टेस्ट सेंचुरीज बनाई थी। विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर की आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के सामने खेली। जिस टीम के अगेंस्ट विराट ने अपनी पहली सेंचुरी लगाई थी, विराट स्कोर्ड हिज लास्ट टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट द सेम टीम, ऑस्ट्रेलिया। दिस वाज हिज 30th टेस्ट सेंचुरी। पर्थ पे खेले गए फर्स्ट टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 100 नॉट आउट बनाया और उनकी ये इंपॉर्टेंट इनिंग्स के चलते इंडिया वन द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इसके बाद के सारे टेस्ट मैचेस में विराट का स्कोर कुछ खास नहीं रहा एंड हमने हर बार उन्हें एक ही तरीके से आउट होते हुए देखा। सिडनी में खेले गए उनके लास्ट इंटरनेशनल टेस्ट मैच में जब वो आउट हुए तब उनका रिएक्शन काफी डिसअपॉइंटिंग था। किसी को नहीं पता था कि वो मैच विराट कोहली का आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है, शायद खुद विराट कोहली को भी नहीं। आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, विराट केम बैक टू इंडिया एंड प्लेड अ रणजी गेम फॉर द दिल्ली टीम एज वेल, लेकिन वहां भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और विराट इस मैच में सिर्फ 6 रन ही बना पाते हैं। दिस वाज द लास्ट टाइम दैट वी सॉ विराट कोहली प्लेइंग इन व्हाइट्स, प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट। विराट के ये लेजेंडरी करियर का ऐसा डिसअपॉइंटिंग एंड शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा। रिसेंटली जेम्स एंडरसन की लास्ट टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि कैसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ईसीबी ने उन्हें फेयरवेल दिया, मगर विराट कोहली जो इंडिया के सबसे बेस्ट टेस्ट कैप्टन रहे हैं, उनको कोई भी ट्रिब्यूट, कोई भी फेयरवेल नहीं मिला। पहले तो इंडिया के कई प्लेयर्स रिटायरमेंट के टाइम फेयरवेल मैच के लिए इश्यूज क्रिएट करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के कितने बड़े प्लेयर्स अब ऐसे ही बिना कुछ कहे और बिना फेयरवेल लिए रिटायर हो जाते हैं, और विराट कोहली भी उनमें से एक है। विराट कोहली's टेस्ट cricket career came a full circle. He started with Ranji and he played his last red ball match for Delhi team in the Ranji Trophy. और सिर्फ इतना ही नहीं, it was destiny that the greatest test captain of India played his last international test match as a stand-in captain. We might not see any other player in future who can fill the shoes of Virat Kohli in test cricket. विराट कोहली का टेस्ट करियर सिर्फ रन्स और उनके नंबर्स की वजह से ही स्पेशल नहीं गिना जाता, बल्कि उनकी माइंडसेट और उनकी अग्रेसिव क्रिकेटिंग स्टाइल के लिए जाना जाएगा। थैंक यू विराट, यू इंस्पायर्ड द फ्यूचर जनरेशन टू टेक अप टेस्ट क्रिकेट एंड डोमिनेट इट। नंबर 269 भले ही रिटायर हो गए हो, बट हिज मेमोरीज एंड हिज लेगेसी विल स्टे इन टेस्ट क्रिकेट फॉरएवर। हैप्पी रिटायरमेंट चीक्स। you